بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر بیدیاں روڈ انڈر پاس کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں منصوبہ مکمل ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر بیدیاں روڈ انڈر پاس کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کہتے ہیں منصوبہ مکمل ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ تو خبر دیں آپ کو، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا گیا ہے اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ کہتے ہیں منصوبہ مکمل ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر بیدیاں روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا گیا ہے۔ اس دورے پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سروسز ہسپتال کے درجہ چہارم کے ملازم کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ارشد بٹ نے 44 ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کروا کر لاکھوں روپے رشوت لی۔ ملزم نے آؤٹ ڈور میں زبردستی 2 کمروں پر قبضہ بھی جما رکھا تھا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، سروسز ہسپتال کے درجہ چہارم کے ملازم کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ارشد بٹ نے 44 ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کروا کر لاکھوں روپے رشوت حاصل کی۔ ملزم نے آؤٹ ڈور میں زبردستی 2 کمروں پر قبضہ بھی جما رکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل پی جی کے ریٹ بڑھنے کی دیر ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیوں نے اوکرا کے نوٹیفیکیشن کا بھی انتظار نہیں کیا اور قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ 2 روز میں فی کلو قیمت 20 روپے تک بڑھی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کی چکی میں پس رہے عوام کو ایک اور جھٹکا، اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی ایل پی جی کی قیمت بڑھا دی گئی۔ مارکیٹ کمپنیوں نے قیمت میں فی کلو 10 روپے اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت 210 سے بڑھ کر 220 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 120 روپے جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت 450 روپے بڑھ گئی۔ گھریلو سلنڈر اب 2495 روپے کی بجائے 2615 روپے میں ملے گا۔ کمرشل سلنڈر 9580 روپے کے بجائے 10030 روپے میں فروخت ہوگا۔ صرف 2 روز میں فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے مارے عوام چکرا کر رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہر چیز ہی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس ٹائم جو ہے نا کہ لاہور کے اندر جو ہے کہ لوگوں کی آمدن 15,000 روپے، اخراجات 30,000 روپے ہو گئے۔ جس بندے کا 15,000 روپے اخراجات ہے وہ 30,000 کدھر سے پورا کرے گا؟ تو ایل پی جی جو ہے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دن کا یہی ہے کہ 500 700 800 یہ ہم نے کمانا ہے اور اسی پہ ہم نے جو ہے نا گھر چلانا ہے۔ اور ادھر آ جاؤ تو ادھر جو ہے نا 10 دن کے بعد آ جاؤ تو وہ ریٹ اپ ہی ہوتا ہے۔ 10 دن کے بعد پھر آ جاؤ، پھر وہ 10 روپے 15 روپے اوپر چلے جاتے ہیں۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی مارے تھے، یہ گاڑی تھی پٹرول پہ، اب ایل پی جی پہ کروائی ہے کہ یہ ہمیں کم ریٹ میں ملتی تھی، اب اس کا بھی ہم ٹیکہ لگائی جا رہے ہیں۔ ہر 15 دن بعد جب پٹرول بڑھتا ہے تو 30 روپے 35 روپے یہ بھی ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں قیمت $92 فی میٹرک ٹن بڑھی، جس کے بعد ایل پی جی کا ریٹ 464 سے بڑھ کر $556 فی میٹرک ٹن تک پہنچ گیا ہے۔ ایک جانب ریکارڈ توڑ مہنگائی تو دوسرا بے لگام ایل پی جی مافیا، عوام پس گئے۔ پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں غریب شہریوں پر ایل پی جی بم بھی تسلسل سے گرائے گئے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو کبھی ایل پی جی بھی سستی نہ ملی۔ اوگرا کی جانب سے کچھ مرتبہ کمی کی گئی مگر مارکیٹ میں مہنگی ہی بیچی گئی۔ گیس مافیا آج بھی منمانے ریٹس لینے پر بازید، دیگر اشیاء کی طرح ایل پی جی کی قیمت بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پی ڈی ایم حکومت کے کچھ مہینوں میں گیس سستی تو کی گئی مگر اوگرا کے ریٹس پر حکومت عمل درآمد نہ کرا سکی۔ 1 اپریل 2022 کو ایل پی جی 13 روپے کلو مہنگی ہوئی۔ قیمت 247 روپے تھی لیکن مارکیٹ میں گیس 270 روپے کلو تک فروخت ہوئی اور کسی نے نہ پوچھا۔ مئی میں 15 اور جون میں 13 روپے قیمت کم ہوئی مگر پھر 32 روپے اضافہ کیا گیا۔ ستمبر میں 6 روپے فی کلو مہنگی ہوئی مگر نومبر دسمبر میں 14 روپے مہنگی کی گئی۔ جنوری 2022 میں بھی الٹی گنگا بہائی گئی، قیمت 12 روپے کم ہوئی لیکن مافیا نے 50 روپے بڑھا دی۔ فروری میں 60 روپے اور مارچ میں 12 روپے کلو ایل پی جی مہنگی کی گئی۔ اپریل میں 49 روپے کمی ہوئی مگر مافیا نے کمی کی بجائے الٹا 10 روپے قیمت
बढ़ा दी। जून में 37 रुपए और जुलाई में 20 रुपए कमी हुई। अगस्त में 24 रुपए इजाफा हुआ। ओगरा की जानिब से LPG 201 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर LPG माफिया आज भी मनमानी करते हुए 250 रुपए फी किलो तक बेचने पर बाजिद है। ज़राए का कहना है कि चंद साल पहले मौसम गर्मा में LPG 120 से ऊपर नहीं जाती थी। 2 बरसे गर्मियों में भी LPG 200 रुपए से ऊपर बिक रही है। बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर की कदर के हवाले से। 3 तातीलात के बाद डॉलर की कदर में तेज़ी आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये तक पहुंच गया। दिन भर में डॉलर की कदर 3 रुपये बढ़ गई। 3 रोज़ की तवील तातीलात के बाद पहले कारोबारी रोज़ बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक डॉलर रेट 291 रुपये की हद अबूर कर गया। बैंकारी औकात के इख्तिताम तक इंटरबैंक डॉलर रेट 291 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि जुमे को इंटरबैंक डॉलर रेट 288 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ था। जबकि ओपन मार्केट में भी तेज़ी रही और ओपन मार्केट में डॉलर रेट 300 रुपये रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक छुट्टियों के बाद डॉलर की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। दरामद कुनिंदगान अपने दरामदी बिल्स क्लियर करने के लिए डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे मार्केट में दबाव रहा। पीडीएम हुकूमत के 16 माह का एक और तोहफा। फी किलो आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 64 रुपए किलो में मिलने वाला आटा पहली बार 130 रुपए में मिल रहा है। दो क्या आवाम एक वक्त की रोटी को तरसने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। ज़री मुल्क और आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत आवाम की दस्तरस में नहीं। साल 2022 में 630 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला अब 1400 रुपये में मिल रहा है। 20 किलो आटे का थैला जो 1260 रुपये में दस्तयाब था अब 2800 रुपये का है। अप्रैल 2022 में 1 किलो आटा 64 रुपये का था। अप्रैल 2023 में कीमत 130 रुपये तक जा पहुंची। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों से ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने गंदम स्टॉक की, जिससे ओपन मार्केट में ताहाल आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। मार्केट में खुला आटा 130 रुपये में बिक रहा है। 10 किलो आटे का थैला सिरे से दस्तयाब नहीं, जबकि 15 किलो का थैला 2400 का है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत ने आटे पर अभी तक कोई सब्सिडी नहीं दी। हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया है। डेटा के मुताबिक ग्रीन राशन कार्ड इशू करने पर फैसला महफूज रखा गया है। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद फैसला वज़ीर आला पंजाब से मशरूत है। मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम पर महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी के बायस आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू कहते हैं गंदम दरामद की जा रही है, जल्द आटे की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सस्ता आटा शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। आटे के दाम दुगना होने पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों की तादाद कम हो गई। आटा तो मौजूद, लेकिन गरीब अवाम में खरीदने की सकत बाकी नहीं रही। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। जब आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत सस्ती नहीं तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स किस काम के। पहले सस्ता आटा नहीं मिलता था, अब खरीदार नहीं मिलते हैं। ये है यूटिलिटी स्टोर्स का हाल। सब्सिडाइज आटे के दाम दुगना होने के बाद गरीबों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। 10 किलो आटा 648 रुपये से महंगा होकर 1281 रुपये का हो गया। दूसरी जानब चीनी और दालें महंगी होकर भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। कहते हैं आटा हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, मगर कीमत 2 गुना कर दी गई है, कैसे खरीदें। चीनी 2 माह से नहीं मिल रही। अब तो महंगाई जो है ना डबल कर दी है, 3 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी है। 1280 रुपये का आटा कर दिया। बाहर इससे भी थोड़ा सा कम है कि चलो स्टोर पे में सहूलत मिलेगी, सब्सिडी दी हुई है। इधर आटा भी हर चीज़ को महंगी कर दिया। आटा महंगे से महंगा कर दिया इन्होंने। तो चीनी है 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, चीनी बिल्कुल ही नहीं आ रही। आटा माड़ा बंदा लै नहीं सकता ते दुनिया भुखी मरन रही है सारी। आटे खुनो ते आटा रहा तो होएगा तो लाएंगे ना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर्स की हिफाजत तो बाकी रहने दी जाए और यहाँ अशिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मार्केट में आटे और चीनी के नर्ख इंतजामिया और आवाम के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। इंतजामिया सरकारी नर्ख तय नहीं कर पा रही तो मार्केट में मनमानी कीमतों पर आटे और चीनी की फरोख्त जारी है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता माह चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा भी कीमतों को ब्रेक न लगा सका। एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 13 रुपये का इजाफा हो गया। थोक मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 13 रुपये बढ़कर 148 रुपये हो गई। परचून की दुकानों पर फ़ी किलो चीनी 160 से बढ़कर 170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। रवां हफ्ते चीनी की 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 800 रुपये मजीद इजाफे के बाद 14,400 हो गया। होल सेलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 91
91 रुपए किलो थी। कीमतों में इजाफा जरूरत से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने से हुआ। शहरियों ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता 8 माह में चीनी की फी किलो कीमत में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका और कीमत 91 रुपए से बढ़कर 170 रुपए तक जा पहुंची। सब्जी ये तो बहुत ही महंगी है। गरीब आदमी अगर गोश्त खाने को दिल करे तो अगर 500-600 का वो सिर्फ चिकन ही ले जाए तो बाकी जो है वो अखराजात कहाँ से पूरे करे। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर आमद दरामद भी ख्वाब बन गया। अशिया जरूरिया सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत में ट्रेन का सफ़र भी महंगाई की पटरी पर चढ़ा रहा। रेलवे के किरायों में होश रुबा इजाफा हुआ मगर मुसाफिरों के लिए सहूलियात ना होने के बराबर रहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पीडीएम हुकूमत के 16 माह ट्रेन का सफर भी अवाम के लिए मुश्किल रहा। रेलवे किरायों में मजमूई तौर पर 51% से जायद इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक रेलवे फ्रेट लगेज किराया मजमूई तौर पर 50% से जायद बढ़ा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस रेलवे किराए मुतासिर होते रहे। 17 जून 2022 को मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया गया। रेलवे फ्रेट के किराए 15% बढ़ाए गए। एक हफ्ते बाद भी किरायों में 5% और फ्रेट में 10% इजाफा किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को मुसाफिर किरायों में 23% इजाफा किया गया। 11 नवंबर 2022 को लगेज किराए 15% बढ़ा दिए गए। 1 फरवरी 2023 को मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 8% इजाफा हुआ। रेलवे किराए तो बढ़ते रहे मगर सहूलतें सुकड़ती रहीं। ट्रेनों की आमद और रवानगी में ताखीर भी मामूल बनी रही। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 12 बजते ही हो गया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशर बा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है, जिसमें पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर के इजाफे के साथ नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई है। इससे पहले पेट्रोल 273 रुपये का शहर भर में फरोख्त हो रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया तो 17 रुपये 50 पैसे का इकट्ठा ही एक ही रोज में इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे कर दी गई है। इसी तरह अगर हाई स्पीड डीजल की बात कर ली जाती है तो उसकी कीमत में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिससे हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 290 से जायद और 40 पैसे हो गई है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज ही 12 बजे से हो चुका है और पेट्रोल जो है अब शहर भर में 290 रुपये 45 पैसे के हिसाब से फरोख्त होना शुरू हो चुका है। अच्छा शाहजेब, बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में जिस तरह बता रहे हैं कि 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, अवाम की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अवाम की जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल ऐसा सामने आ रहा है कि अवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है, जिनका ये कहना है अवाम का कि पहले भी जो है वो पेट्रोल की कीमत में इकट्ठे 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया था और अब जो नई वफाक निगरान हुकूमत आई है उसमें भी हुकूमत ने आते ही 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। और पहले ही जहाँ पे महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़ रखी है और महंगाई का तूफान पूरे मुल्क भर में जारी है और इस दौरान अगर पेट्रोल की कीमतों में इस तरीके से इजाफा होता गया तो अवाम बेचारी कहाँ पे जाएगी? घरों में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और अगर पेट्रोल इस तरीके से बार बार महंगा होता जा रहा है और पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय मजीद इजाफा करती जा रही है तो खाना पीना भी अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। जी शाहजेब तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया शाहजेब।